السلام علیکم۔ آج آپ کو ہم نے آم کے روشن دان بنائے تھے، ان کو ہوا کا رخ دینے کے لیے آپ ان کو جو رزلٹ دیا ہے ان پلاٹ شہری سندری، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کو فل سورج کی روشنی ملی ہے۔ یہ باغ ابھی دیکھیں کس طرح یہ فلاور آ رہا ہے۔ یہ دوسری کا پلانٹ تھا، اس سے ہم نے یہ سب لکڑی پر سال نکال لی تھی۔ ابھی وہ اس کا فلاور دیکھیں کس طرح یہ پھول آ رہا ہے۔ تو مقصد ہمارا یہی کہنے کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک توانائی بھیجی ہے، بخشی ہے، طاقت دیا ہے سورج کی بذریعہ سورج، تو اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ لیکن ہماری کیا ہے، ذہن میں ایک غصہ بھرا ہوا ہے، لالچ بھری ہوئی ہے۔ ہم باغات کو گیدرنگ کی طرف سے گھنے صورت میں بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے پیڑ کاٹ دیے۔ وہ کیا ہو گیا، ان نے سارا اوپر سایہ کر دیا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس زمین ہماری دھرتی ماں کو بھی سورج کی روشنی نہیں ملتی، جو اس کو توانائی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ وہ بھی ایک بانجھ کی صورت اختیار کر جاتی ہے جو ہماری دھرتی ماں ہے، وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا ریئیکشن ہمارے پلانٹ پر ہوتا ہے، پودے پر ہوتا ہے۔ اس کو پراپر طریقے سے نیچے والی خوراک نہیں ملتی۔ اوپر وہ درخت بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے درخت بن چکے ہیں، بڑے بہت وہ آپس میں وہ مل چکے ہیں، جیسے یہ ہمارے پلانٹ مل چکے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ راستہ توانائی کے لیے، سورج کی روشنی کے لیے، ہوا کے لیے یہ چھوڑا ہوا ہے۔ دوسرا ہمارا ان سے یہ باغ مختلف ہے۔ یہاں سٹیپ بنے ہوئے ہیں نیچے اوپر نیچے، جس کی بدولت اس کو ہوا اور دھوپ اچھی طرح ملتی ہے۔ باقی آپ کو آگے دکھاتے ہیں، آگے دیکھیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے اس کو باغ کو، اس سندڑی کو، یہ جو سندڑی گڑا ہے، یہ اس کو کتنا فلاور آ رہا ہے۔ اگر یہ سندڑی کا پلانٹ بڑا ہوتا، اس کو ہم نہ کاٹتے، تو کیا یہ اتنا فلاور دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ اس کو فل پوری سورج کی آب و تاب کے ساتھ اس کو توانائی ملی ہے۔ اس وجہ سے سورج کی پوری طاقت ملی ہے، روشنی ملی ہے۔ ساتھ ہی ہمارے جو اوپر نیچے ہم نے یہ سٹیپ بنائے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کو فل طاقت مل رہی ہے۔ دھرتی ماں زمین کو بھی انرجی فل سورج کی توانائی کی صورت میں، جیسے یہ ہوا چل رہی ہے اس کی صورت میں یہ اسے مل رہی ہے۔ یہ ابھی یہ فلاور دیکھ کے کتنا اس کا خوبصورت فلاور آیا ہوا ہے۔ پچھلے سال بھی ایسے تھا، اس سال بھی ایسے۔ یہ کوئی سال اس کی وارہ بندی نہیں ہوتی۔ کو لوگ کہتے ہیں باغ اس سال پھل دیا ہے، ایک سال نہیں دیتا، لیکن ہمارے باغ کو دیکھو ہر سال پھل دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ہم نے ایک درخت کی، ایک پودے کی قربانی دی، اسے کاٹا، لیکن اس کے باوجود یہ پودا بھی انشاءاللہ ہمیں سال دو سال بعد بھرپور پیداوار دے گا۔ تو یہ نقصان ہمارا نہیں ہوا، الٹا ہمیں بینیفٹ اتنا ملا، یہ اتنا فلاور آ گیا۔ ابھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارا کالے چورسے کا پلانٹ ہے، درخت ہے۔
पौधा है, बड़ा पौधा था। इसको ये काला चौर था, आपको ये भी मालूम है, इस साल फल देता है 1 साल, ये फिर कमज़ोर हो जाता है क्योंकि इसका फल नवंबर तक इस साल खड़ रहा, अक्टूबर नवंबर तक। तो इस वजह से ये थोड़ा कमज़ोर हो गया पौधा। लेकिन ये काले चौर से कि आपको पता है ये घना बहुत होता है, तो इसका एक हमने इसको हवा लगवाने के लिए, ये हमारे साथ ही ये चौरसे का ये सिंदरी का प्लांट खड़ा था, इसको इनको पूरी तवानाई टेम्परेचर सूरज की ताकत देने के लिए, अगर ये इनकी टहनी ये दरमियान से हम टहन ना निकालते, ये शाख ना निकालते, ये लकड़ी ना निकालते, तो ये सारा इस पर साया होता, धूप ना आती। उस वजह से इसे हमने निकाला। लेकिन निकाल कर जिस तरह हमने देखे थोड़ा सा मिसिंग हुआ कटाई वाले से, तो हमने फ़ौरन इस पर पेस्ट लगा दिया एक देसी गोबर का। तो इसको कोई नहीं होगा, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट साल ये भी फल देगा। तो ये हमारा एक रोशनदान, ये इस तरीके से दरमियान वाली हमने लकड़ी शाख निकाल ली, जो टहनी ऊपर जा रही थी वो निकाल ली। तो इसका क्या हुआ रिज़ल्ट, इनको ये चौर से ये सिनरी का प्लांट खड़ा है, ये फ्लावर हमें फुल ये इन पर फ्लावर आएगा। आगे आपको दिखाते हैं। ये हमने इसका रोशनदान पिछले साल बनाया था इसकी कटाई के लिए, इस लंगड़े अभी आपको ये समझ आ रही होगी इसका किस तरह घेरा बन गया है, किस तरह ये कटोरीदार दरख्त बन गया है। और इसका फ्लावर दे अभी आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह खूबसूरत फ्लावर आ रहा है। ये इधर ये हमने इसको देखें, ये दरख्त इसी तरीके से थे, थोड़े कमज़ोर भी थे। अगर हम इनकी पूरा भी काट सकते थे, फ्लावर भी काट सकते थे इनको ताकतवर बनाने के लिए, लेकिन हमने इनको इसलिए इनकी बड़ी बड़ी टहनियाँ काट दी ताकि इनकी फुल हवा और तवानाई सूरज की ये इसकी ना रोकें, जो अगले प्लांट हैं उनको मिलती रहे। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि इसको जितना हो सके बाग को खुश्क रखें, खुश्की के साथ साथ इसमें हवा का रुख और सूरज की तवानाई का, ये आप हर सूरत में इस बाग में इंटर होने दें ताकि ये खूब ताकत पकड़े। इन खाद और स्प्रे से ये हज़ारा हाथ दर्जे बेहतर आए। ये अपना सूरज की रोशनी की ताकत और हवा की, इसको आपको बार बार कह रहे हैं, जिस तरह हमने खुश्क रखा हुआ है, देखें किस तरह खुश्क है, सफा है। इसको धूप लगने दें, खुश्क रखें ताकि इसको फंगस कोई बीमारी ना लगे। तो इस तरह ये आप देख रहे हैं जितना हम इसके लिए कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप बागबानों को हम बार बार यही मशवरा देंगे कि आप बाग में जैसे हम कमरे का रोशनदान रखते हैं, कमरे को हवा लगने के लिए, कमरे की स्मेल दूर करने के लिए, कमरे के अंदर रोशनी जाए ताकि कोई फंगस, कोई बीमारी, कोई ऐसी वैसी नमी ना रह जाए जिस वजह से जरासीमों को ताकत मिलती है। जरासीमों की एक आम जगह बन जाती है या आराम गाह बन जाती है। ये सूरज की रोशनी में इतनी ताकत है कि उसे फ़ौरन ख़त्म कर देती है। बजाय आप स्प्रे करें, स्प्रे मारते फिरें कमरों में। तो यही एक मिसाल है, हमारे बुज़ुर्ग ज़रूर हर कमरे में 2-2 3-3 रोशनदान रखते थे ताकि कोई ऐसा जरासीम, ऐसी बीमारी अंदर ना प्रवेश पाए। लेकिन आजकल तो
जंगल जैसे हम लोगों शहर में जंगल बसाए हुए हैं, सीमेंट के जंगल, लोहे के जंगल, तो वहाँ तो ऐसे मिट्टी बांध चुके हैं, वहाँ तो कोई पता नहीं है सूर्य निकल रहा है या निकल रहा है, तवाने मिल रही है या न मिल रही है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये इसकी मिसाल आपको ये बाग बता रहा है, बाग की आप लोकेशन देखें कैसे फ्लावर आ रहा है, कैसे ये हरा भरा ताकतवर खुशनुमा है। ये देखें आप कि किस तरह ये इस पर फ्लावर आ रहा है, देखें फ्लावरिंग हो रही है। इस तरह ये पौधे सारे जो हैं हमारे नाजुक कमज़ोर से पौधे थे। जब यहाँ की कटाई कर रहे थे तो काफ़ी लोग यहाँ से देख रहे थे या यहाँ से गुज़र रहे थे या राह गुज़र थे या जो यहाँ पे आए हुए थे लोग, तो जो खुद जो काटने वाला था, लकड़ी जो काटने वाला था मशीन वाला, वो खुद भी कह रहा था भाई इतना जुल्म ना करो पौधों साहब, इतना जुल्म ना करो पौधों साहब, पौधे को आप जुल्म कर रहे हैं। तो उस वक्त ऐसा लगा कि वाकई जुल्म कर रहे हैं शाह साहब, महसूस भी हो, मुझे भी महसूस हो रहा था। लेकिन अभी आप देखें कि कितना ये खुशनुमा पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, कितना वैसे कहते हैं ना एक खुशी मिली हो कि बोझ उतर गया सीने से, जैसे एक किस्म का आप समझें एक आप जैसे कोई डिप्रेशन में होता है और डिप्रेशन कोई वजह होती है वो ख़त्म हो गई हो, तो वो डिप्रेशन से एक इंसान बह रहा हो तो उसे कितनी खुशी मिलती है। वैसे ही ये बेचारे टेंस जो थे, स्ट्रेस थे, वो सारी इनकी ख़त्म हो गई। अब ये देखे फल किस तरह उठा रहे हैं, खूबसूरत फल उठा रहे हैं, देख फ्लावरिंग चेक कर सकते हैं आप। तो इसी तरह हम यही कह रहे थे कि हर चीज़ अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है, नेचुरल चीज़ बनाई है, फितरी चीज़ बनाई है, कुदरती चीज़ जो बनाई है हमारे लिए, वो बहुत ही अहम है हम इंसानों के लिए, बहुत ही अहम है। जैसे सूरज है, हवा है, सूरज हवा हो गई, या क्या कहते हैं मिट्टी हो गई, जैसे नीचे मिट्टी ये है, ये वाली मिट्टी हो गई। मतलब हर चीज़ जो है नेचुरल है वो हमारे लिए खुदा ने उसमें कोई ना कोई हमारे लिए फ़ायदा रखा है। कुरान में भी लिखा हुआ है कि ज़मीन में फैल जाओ, ज़मीन में इतना ख़जाना है कि ये आप सारी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं हो सकता, इतना वसाइल है। मतलब वसाइल का मतलब ये नहीं है कि सोना चांदी हीरा वगैरह मिलेगा, मतलब ये होता है कि आप इसी ज़मीन से कुछ निकालो, कुछ बनाओ। जैसे आप बाग हमने शाह सब लगाया, कितना ये बाग ही जेवर होता है ना ज़मीन के लिए। अब फसलें उगाओ या मतलब ख़ास तौर पे जो ज़ोर दिया गया वो बागात पे ज़ोर दिया गया। तो इस वजह से अक्सर लोग यही गलतफहमी में शिकार हो जाते हैं कि नहीं कुछ सोना चांदी वो छुपे हुए हैं, गैस वो छुपी हुई है, तेल छुपा हुआ नहीं भाई। अब अंग्रेज़ जो अंग्रेज़ जो बरसगीर पे हमला किया था, इस पर कब्ज़ा किया, क्यों किया था? इसकी ज़मीन की वजह से कब्ज़ा किया था। तो वो छोड़ के क्यों गया है? क्योंकि वो उसे वो चीज़ नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी, वो उन्होंने वहाँ से निकाल ली थी सब कुछ। तो वो सोना चांदी के लिए तो नहीं आया था, तेल के लिए तो नहीं आया था, वो आया था सिर्फ अपने मकसद के लिए आया था। थोड़ा सा मतलब यहाँ की ज़मीन अच्छी है, यहाँ पे हर चीज़ अच्छी लगती है, तो इसलिए वो आया था। तो वो जाते जाते माइंड सेट में यही रह गया, हमारे माइंड में यही रह गया कि भाई आप गुलाम ही रहो, ये चीज़ आप उगा रहे हो, लगा रहे हो, वो सारी चीज़ हमें तो यही माइंड सेट बना हुआ। तो आप यही चीज़ मकसद ये मेरी बात करने का कि आप देख सकते हैं कि एक नेचुरल चीज़ जो होती है उसका कोई रद्द बदल नहीं होता। आप चाहे जितना कोशिश करें, आर्टिफिशियल चीज़ों का रद्द बदल होता है, कभी भी नेचुरल चीज़ों का रद्द बदल नहीं मिलता आपको। तो ये तब मिलता है, वीडियो में सब नहीं रहेगा। स्टैंड राउंड फसीन पसा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।